परेड में अस्त्र शस्त्र एवं शत्रु से छीने हुए हथियारों आदि का भी प्रदर्शन होता आया है। इसी सिलसिले में प्रशिक्षण के पश्चात प्रशिक्षणार्थियों की दक्षता एवं कौशल के प्रदर्शन हेतु दीक्षांत परेड का आयोजन किया जाता रहा है। The chief guest of today's grand function will be Shri Rabdeep Singh Sahi, Additional Director General of CRPF. From the time immemorial, parades have been a well-known means of showcasing the power and might of armies all over the world. Through the parade, the people of country have been introduced to the military power. हमारे बीच है IG BSF। इनका आगमन से हम सुशोभित हो चुके हैं। तालियों से इनका स्वागत करें। Through the parade, the people of the country have been introduced to the military power of the nation. In this connection, after the training, a convocation parade is organized to showcase the efficiency and skills of the trainees. केंद्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय 3 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मुदखेड़ के सीधे नियुक्त अधीनस्थ अधिकारियों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण, पदोन्नति कोर्स एवं विभिन्न कोर्सों को संचालित करने वाला सर्वश्रेष्ठ संस्थान है, जिसका आदर्श वाक्य है करेज, एक्यूरेसी, रिजल्ट्स। इस CTC 3 की आधारशिला दिनांक 5 अप्रैल 1994 को तत्कालीन माननीय गृह मंत्री श्री शंकर राव बी चौहान द्वारा रखी गई थी। वह दिनांक 1 मई 1995 को प्रशिक्षण संचालन का कार्य शुरू किया गया था। इस संस्थान के प्रथम प्राचार्य उप महानिरीक्षक महोदय श्री PC जोशी के रूप में इस संस्थान में संलग्न किए गए थे। Central Training College 3 Mudikhed was established in May 1994 with the specific requirement of the force to train directly appointed subordinate officers. Besides, some in service and specialized courses inter alia are also connected. The whole campus is extended over 340 acres of land. In addition, CTC 3 Mudikhed has a firing range spread over 40 acres of land and located at a distance of 16 kilometers from the camp at village Jamli. The campus established for this institution is quite adequate to meet the needs of outdoor training and to conduct indoor classes. At present, 2 batches of DASO, that is 94 and 95, are currently in the institution. Various training programs are being undertaken in CTC 3 Mudikhed, wherein the basic courses are DASO course, Departmentally Enlisted Subordinate Officers course, Directly Appointed Hospital Staff course, Directly Appointed Ministerial Staff course. Some of the specialized and in-service courses are also being done here, such as Commando course, Navigational Skill course, Drill Instructor course, Junior Leadership course, Shooting Skill course, various promotional courses such as HCPC, ASIPC, SIPC and IPC. केंद्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय 3 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मुदखेड़ नांदेड़ में तैनात उच्च अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी एवं अन्य रैंक को वर्ष 2022 से 2023 में विशिष्ट आंतरिक सुरक्षा पदक 2, महानिदेशक डिस्क ब्राउन एडम 2 एवं गृह मंत्रालय द्वारा उत्कृष्ट प्रशिक्षक पदक 2 प्रदान किए गए हैं। Out of these trainees of 349 of DASO 94 batch, there are 339 males and 10 females. Majority of them are of age group from 25 to 30 years.
Around 310 trainees are graduate, 38 trainees are postgraduate, and all these trainees are qualified in various streams such as art, commerce, law, and science. These subordinate officer trainees mainly belongs to 16 different states of our country, wherein they are mainly hails from Rajasthan, Uttar Pradesh, Haryana, Bihar, Manipur, and various southern states of the country. आपको बताना चाहूँगा, इस बैच के लिए बुनियादी प्रशिक्षण दिनांक 11 जुलाई 2022 को शुरू हुआ। कुल 372 प्रशिक्षु अधीनस्थ अधिकारी एवं 20 प्रशिक्षु एक्स सर्विसमैन अधीनस्थ अधिकारियों ने सीटीसी में बुनियादी प्रशिक्षण हेतु रिपोर्ट किया था, जिसमें 20 प्रशिक्षु एक्स सर्विसमैन अधीनस्थ अधिकारी ने 8 सप्ताह के बुनियादी प्रशिक्षण के प्राप्त करने के उपरांत अपने अपने वाहिनी एवं समूह केंद्र में रिपोर्ट किया। बुनियादी प्रशिक्षण 48 सप्ताह का है, जिसमें 288 दिन शामिल है। 194 बैच ने 48 सप्ताह का बुनियादी प्रशिक्षण पूर्ण कर आज इस दीक्षांत परेड में आपके समक्ष उपस्थित हैं। बुनियादी प्रशिक्षण में अब तक प्रारंभिक कंडीशनिंग, प्रगतिशील शारीरिक प्रशिक्षण, फुट ड्रिल, हथियार प्रशिक्षण, सीआरपीएफ संगठन संरचना, सीआरपीएफ का इतिहास, शिष्टाचार और व्यवहार, सीआरपीएफ नियमावली, सीआरपीएफ अधिनियम और नियम मॉड्यूल, जीआईएस मॉड्यूल, आसूचना मॉड्यूल व हेरिटेज टूर एवं जंगल प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। Training is a process of conscious, deliberate, and planned effort aimed at developing a particular type of aptitude, attitude, traits, skills, expertise, and orientation in trainees. Thus, training is an important tool for the development of knowledge, skills, and attitude of personnel in any organization. For the Central Armed Police Forces, it is as a fundamental requirement to inculcate in its personnel the sense of discipline, knowledge, work, ethics, and operational efficiency. Let me now inform you about the brief history of Central Reserve Police Force. The CRPF's journey began on 27th of July 1939 at Nimach as a small force named Crown Representative Police with a strength of 1,000 members of various religions background to showcase the secular character of the CRPF, to maintain peace during the tumultuous times of pre-independence India. Over the years, it has grown into one of the largest paramilitary forces in the world, earning a reputation for its unwavering commitment to the duty and remarkable acts of valor. Today, as you step forward into the world as proud CRPF subordinate officers, you became a part of this storied legacy, a legacy of courage, sacrifice, and service to the nation. It became the Central Reserve Police Force on the enactment of CRPF Act on 28th of December 1949. It has completed 84 years of glorious history. भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंगाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण हैं, सागर इसके पग पखारता है। यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसकी बूंद बूंद गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए। इस देश के वीर जवानों के त्याग व बलिदान ने अपने खून से आसमां पर इनकलाब लिखकर क्रांतियों के अनूठे
और अविस्मरणीय इतिहास रचे हैं। ईंट ईंट जुड़ी, अक्षर अक्षर मिला, और इन सब से बना हमारा अपना भारत। भारतीय आज़ादी के इस लंबे सफर में धूप भी आई और आंधियां भी। तपती धूप की तपन ने जहां हमें सहनशील बनाया, वही आंधियों ने हमें सिखाया मुकाबला करना। आकाश का विस्तृत और समृद्ध फैलाव हमारी असीमित महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है। प्रत्येक सैनिक राष्ट्रीयता की परिधि में अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहता है। अपनी जिंदगी का एक एक पल वतन पर जान न्यौछावर करने को तत्पर रहता है। उसकी महत्वाकांक्षाओं के केंद्र बिंदु में वतन की आन बान व शान सम्मिलित रहती है। राष्ट्र की सुरक्षा, सुख और शांति स्थापित करने के लिए ये जवान हर पल तैयार होते हैं। The entire venue is packed with dignitaries, officials, and spectators. Everyone's eyes are fixed on this main function of today, where the sharp eyes of the senior officer will test the agility, promptness, and hard work of these directly appointed subordinate officers. On the other hand, the eager faces of young children and women will take some inspiration from these directly appointed subordinate officers and take a pledge to become like them in the coming times. And in this glorious environment of Central Reserve Police Force, molding itself in this environment full of nationalism, it would not like to miss the opportunity of patriotism and dutifulness. इतिहास के गौरवशाली अध्यायों में आज़ादी सिर्फ कागज़ में लिखे शब्दों का नाम नहीं, बल्कि विदेशी शोषण, आक्रमण, रक्त रंजित मानवता, अधिकारों व स्वतंत्रता के लिए भारतीयों के सतत संघर्ष और सैनिकों तथा देशवासियों की कुर्बानी से रचा एक ऐसा दस्तावेज है जिसे हम सब दिल की गहराइयों से महसूस करते हैं। यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक जवान कुर्बानी के इस जलवे को दिल से महसूस करते हुए देश की सुरक्षा की खातिर स्वयं को समर्पित करने के अपने पाक इरादे आज यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता है। इस अवसर पर प्रत्येक प्रशिक्षु अधीनस्थ अधिकारी का दिल हर्ष और अपार जोश से उल्लासित है। इन प्रशिक्षु सीधे नियुक्त अधीनस्थ अधिकारियों का हौसला बढ़ाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों, उनके परिवारजनों एवं गण्यमान्य अतिथियों की मौजूदगी से ये सारा आलम एक निराले जोश व उमंग से उल्लाहित हो चुका है। जोश, उल्लास व उमंग का यह मिला जुला समा इस माहौल में एक तरन्नुम कायम कर रहा है। ऐतिहासिक समारोह और एक अविस्मरणीय पल को साक्षी बनाकर यहाँ पर उपस्थित दर्शकगण इस समारोह की गरिमा बढ़ा रहे हैं। महानायकों की उपस्थिति राष्ट्रीय भावनाओं को परिपुष्ट और सशक्त बनाती है। राष्ट्र का कोई मानक नहीं है, इसका मुख्य आधार है भावना। अपने राष्ट्र से विवेकपूर्ण लगाव ही राष्ट्रीयता है। भिन्नता में एकता का दर्शन देश की पहचान है। इस दीक्षांत परेड में शामिल सीधे नियुक्त अधीनस्थ अधिकारी प्रशिक्षु में एकता का मूल मंत्र दिखाई पड़ता है। अब सभी की निगाहें आज के इस समारोह के उस पल के इंतजार में है जब आज के परेड की झलक हमें देखने को मिलेगी। इंतजार के पल धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। अब कुछ ही पलों में आप आज की दीक्षांत परेड को किले की प्राचीर से आते हुए देखेंगे, जिसमें पुरातन काल में बिगुल की मधुर ध्वनि के साथ फौजें रण क्षेत्र के लिए कूच किया करती थी। बिगुल की ध्वनि सैनिकों की धमनियों में रक्त संचार ज्वलित करता है और उनके जोश और मनोबल को शिखर तक पहुंचाता है। During the training, the trainees were given 26 days jungle camp exposure at Jamli and field firing practice at Nimach. The said trainees were sent to Bangalore, Hyderabad, Ahmedabad, Bhopal,
Mumbai, and Pune for study tour and historical field visit. Under the Talent Hunt campaign being run in the Central Reserve Police Force from time to time, the trainees of this batch और इसी के साथ मार्कर कॉल संकेत है आज के इस प्रदर्शन के शुभारंभ का। There are 8 number of platoons in the parade with a section of CRPF band. Today's parade will be commanded by Sub-Inspector Trainee Siddharth Singh Bhadoria and parade adjutant will be Sub-Inspector Trainee Vishwas Kumar Dubey. सभी की निगाहें आज के इस समारोह के इस पल के इंतजार में है। अब आप देख रहे हैं परेड की पहली झलक। आप सभी से अनुरोध है कि तालियों से इन सभी का उत्साहवर्धन करें। अब मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा किले की प्राचीर की ओर से, जहां से 48 सप्ताह तक अथक परिश्रम करने के पश्चात जोश से सराबोर और एक नई उमंग के साथ उप निरीक्षक प्रशिक्षु टुकड़ियों में परेड ग्राउंड पर आते हुए। पुरातन काल में बिगुल की मधुर ध्वनि के साथ फौजें रणक्षेत्र के लिए कूच किया करती थी। बिगुल की ध्वनि सैनिकों की धमनियों में रक्त संचार द्वेलित करती है तथा उनके जोश और मनोबल को शिखर तक पहुंचाती है। उसी परंपरा को कायम रखते हुए बिगुल ध्वनि का आज भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि आप देख रहे हैं, किले के मुख्य द्वार से पंक्तिबद्ध तरीके से बैंड की मधुर धुन पर पूरे उत्साह और जोश के साथ यह सीधे नियुक्त अधीनस्थ अधिकारी बैच 94 के परीक्षणार्थी आकाश की ऊंचाइयों को छूने को तत्पर परेड स्थल पर आपके समक्ष पंक्तिवार होते हुए अनेकता में एकता, जो कि हमारे देश की एक विशेषता है, का साक्षात उदाहरण प्रस्तुत करते यह सीधे नियुक्त अधीनस्थ अधिकारी बैच 94 के परीक्षणार्थी यह विभिन्न धर्म एवं समुदायों के होते हुए भी मैत्रीपूर्ण भावों के साथ भाईचारा निभाते हुए देश की सेवा के लिए एकदम तैयार है। इन सभी जाबाज रणबांकुरों से कहना है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है कुछ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापी है कुछ मुट्ठी भर जमीन, आगे तो सारा आसमान अभी बाकी है, सारा आसमान अभी बाकी है। To these proudly marching soldiers, I want to say, हालातों के कदमों पर कलंदर नहीं गिरता, हालातों के कदमों पर कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो ज़मीं पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिए, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता, समंदर नहीं गिरता। अब आप देख रहे हैं परेड को मध्य सच की कार्यवाही करते हुए अपने आप को पंक्तिवर करने के लिए यह कार्यवाही की जाती है। आप देख सकते हैं परेड के दस्ते अपना स्थान ले चुके हैं। परेड के मध्य में है सबसे आगे परेड की कमान संभाले हुए परेड एडजुटेंट उप निरीक्षक प्रशिक्षु विश्वास कुमार दुबे। परेड कमांडर उप निरीक्षक प्रशिक्षु सिद्धांत सिंह भदौरिया परेड ग्राउंड पर उपस्थित हैं। परेड एडजुटेंट उप निरीक्षक प्रशिक्षु विश्वास कुमार दुबे।
परेड एडजुटेंट उप निरीक्षक प्रशिक्षु विश्वास कुमार दुबे परेड की कमांड परेड कमांडर को सौंपने के लिए अग्रसर। परेड एडजुटेंट ने परेड की कमांड परेड कमांडर को सौंपी। परेड की कमांड परेड कमांडर को सौंपने के पश्चात अब दोनों ही अपने निर्धारित स्थान की ओर जाते हुए। This Central Training College has been instrumental in transforming these young and talented officers into men of actions. They have been trained to walk by commands and order set over them. Precisely, they are men and women who will transform a well-conceived motto of CRPF, that is, service and loyalty, into reality. Subordinate officers passing out today have set a noble example for generations to come. These are the men and women who have dared to think beyond their own self, pursuing the service of the nation and going beyond personal interest. They have proved their nobility and have made us feel proud. अब कुछ ही समय में कमांडेंट महोदय श्री लीलाधर महारानिया मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी केंद्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय 3 सीआरपीएफ मुठखेड़ का आगमन होगा। श्री लीलाधर महारानिया कमांडेंट सीटीओ का जन्म 25 जून 1969 को राजस्थान राज्य के जिला झुंझुनू में हुआ। आपने स्नातक तक की शिक्षा अपने गृह राज्य से उत्तीर्ण की है। भारतीय सेना से प्रभावित होकर आप वर्ष 1994 25वें बैच में राजपत्रित अधिकारी के तौर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सहायक कमांडेंट के पद पर पदस्थ हुए। अपनी सेवा अवधि में आप भारत के विभिन्न संवेदनशील राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र, त्रिपुरा, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान, केरल, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश जैसे आदि राज्यों में पदस्थ रह चुके हैं। अपनी सेवा अवधि में आप इससे पूर्व आरटीसी पेरिंगम में सफल प्रशिक्षक के तौर पर पदस्थ रह चुके हैं। इसके अलावा आपने अपनी सेवाएं पूर्व CIAT शिवपुरी में भी एज ए सफल प्रशिक्षक के तौर पर आप काम कर चुके हैं। आपकी वीरता एवं आदर्श कमांडिंग के लिए आपको हार्ड एरिया सर्विस मेडल नॉर्थ ईस्ट, हार्ड एरिया सर्विस मेडल छत्तीसगढ़, हार्ड एरिया सर्विस मेडल जम्मू एवं कश्मीर, आंतरिक सेवा सुरक्षा मेडल प्राप्त हुए हैं। महोदय, आपने दिनांक 14 जुलाई 2020 से केंद्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय केरी पूपल मुठखेड़ में उपराय CTO का पदभार ग्रहण किया और वर्तमान समय तक अपने अनुभवों से प्रशिक्षण में अति महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहे हैं। The journey of 1,000 miles begins with a single step. Today, the final step will be taken by these officers, will be the first step in the service to the nation. From here onwards, they will be traveling along a long, challenging voyage where they will be tackling various kinds of law and order situation. These will be the men and women who will provide nation the true leadership at the time of need. Every one of us who is watching this parade is a witness of such a great achievement by these young officers. It was never an easy job to successfully complete this training with ease. There have been times when they had to bear a high degree of pain. Also, there have been occasions when the body had touched the pinnacle of endurance and patience. But these officers never quit. They overcome their weakness and transformed it into their strength. अब कुछ ही समय में कमांडेंट महोदय श्री लीलाधर महारानिया मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी केंद्रीय रिजर्व प्रशिक्षण महाविद्यालय 3 CRPF मुठखेड़ का आगमन
हमारे बीच हैं कमांडेंट महोदय श्री लीलाधर महारानिया, मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी, केंद्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय 3, सीआरपीएफ मुठखेड़। आप सभी से अनुरोध है कि तालियों के साथ इनका अभिवादन करें। परेड ने सलामी देकर महोदय का अभिवादन किया। अब कुछ ही समय में निशान टोली का परेड स्थल में आगमन होगा, अतः आप सभी से अनुरोध है कि जब निशान आपके सामने से गुजरे तो कृपया इसके सम्मान में खड़े हो जाएं तथा वर्दीधारी सैल्यूट करें। Nishan Toli will arrive. Nishan Toli will arrive in the parade ground in a few moments. Hence, you all are requested to stand in its respect and uniform are to salute. ध्वजवाहक टोली की कमान संभालते हुए निरीक्षक जीडी मूलगीर शिवाजी। राष्ट्र ध्वज के वाहक होने का सम्मान मिला है निरीक्षक जीडी सुभाष चंद्र को एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के निशान को निरीक्षक जीडी भूपेन्द्र चंद्र दास संभाले हुए हैं। इनके हाथों में लहराते हुए ध्वज बताते हैं हमारे राष्ट्र की मजबूती एवं इस बल की कर्मठता को। ये सिर्फ 3 रंग नहीं, यह देश की शान है। यह तिरंगा हमारे दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हमारी जान है। 3 रंगों में रंगा यह अपना प्यारा हिंदुस्तान है, अपना प्यारा हिंदुस्तान है। Every one of us who is watching this parade is a witness of such great achievement by these young subordinate officers.
आज के इस दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह में अब इंतजार है ब्रिगेडियर GS रेड्डी, पुलिस उप महानिरीक्षक प्राचार्य, केंद्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय 3 मुठखेड़ का, जो कि कुछ ही क्षणों में हमारे बीच उपस्थित होंगे। महोदय का आगमन होता हुआ। ब्रिगेडियर GS रेड्डी, पुलिस उप महानिरीक्षक प्राचार्य, केंद्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय 3 मुठखेड़ का आगमन। परेड ने जनरल सैल्यूट देकर प्राचार्य महोदय का अभिवादन किया। इस सलामी से मानव प्रशिक्षुओं ने भाव व्यक्त किया हो, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। Brigadier GS Reddy, Sena Medal, DIG, was born on 5th of July 1963 and he hails from Guntur district of Andhra Pradesh. He did his initial schooling from Sainik School, Kurukonda before joining NDA. He is an alumni of National Defence Academy at Khadagbasla and Indian Military Academy, Dehradun. He was commissioned in the 9th Battalion Jammu and Kashmir Rifles in December 1985. During his long tenure in the army, he served all over India, including Andaman and Nicobar Island. He has been an instructor in IME, served as staff officer at Andaman and Nicobar Island with Navy, commanded Rashtriya Rifle Battalion, an infantry battalion, and infantry brigade. He has done various army courses, including platoon weapon course, support weapon course, commando course, 81 mm mortar, anti-tank guided missile course, junior leadership course, combat team commander course, senior commander course, and naval high commander course. Because of his praiseworthy performance and exemplary courage in eliminating 2 dreaded terrorists in Jammu and Kashmir Valley, he was awarded with Sena Medal in 2005. Thereafter, he retired from Army as Brigade on 31st of July 2019. Further, Brigadier GS Reddy, Sena Medal, joined our largest paramilitary force, that is CRPF, as Deputy Inspector General of Police on 30th of September 2019. Thereafter, he took over the charge of Principal CIAT Silchar CRPF, Assam on 2nd of December 2019 and supervised the various promotional and in-service courses, pre-induction training at CIAT courses. यह सजी धजी परेड और एक खूबसूरत माहौल हमें इंतजार है। दीक्षांत परेड एवं शपथ ग्रहण समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री रविदीप सिंह साही, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का।
कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री रविदीप सिंह साही, एडिशनल डायरेक्टर जनरल केंद्रीय रिजर्व पुलिस, हमारे बीच उपस्थित होंगे। परम आदरणीय श्री रविदीप सिंह साही, एडिशनल डायरेक्टर जनरल दक्षिण जोन, मान्यवर आप गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर पंजाब में मास्टर्स डिग्री पार्ट 1 के छात्र रहते हुए 20 वर्ष से भी कम आयु में दिनांक 14 अगस्त 1986 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारी के रूप में सहायक कमांडेंट के पद पर नियुक्त हुए। आप बल के गौरवपूर्ण एडिशनल डायरेक्टर जनरल के पद को दिनांक 1 फरवरी 2023 से सुशोभित कर रहे हैं तथा वर्तमान में इंस्पेक्टर जनरल त्रिपुरा सेक्टर कार्यालय से स्थानांतरण पर दिनांक 23 मार्च 2023 से दक्षिण जोन का कार्यभार संभाल रहे हैं। अपने पूरे सेवा काल के दौरान आपने देश के विभिन्न कठिन व सुदूर क्षेत्रों में कार्यरत रहते हुए अमूल्य व निष्ठापूर्ण सेवाएं प्रदान की। वर्ष 2002 से 2007 तक आपने भारतीय संसद भवन की सुरक्षा में भी अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की हैं। आपने विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेकर उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है। आपने विभिन्न खेल क्रीड़ाओं में भी काफ़ी रुचि रखते हुए अलग अलग हासिल किए हैं। आपने 1995 में अक्टूबर नवंबर महीने के दौरान हिमालयन कार रैली में हिस्सा लिया तथा तृतीय स्थान प्राप्त किया। आप वर्ष 1998, वर्ष 2000, 2001 व 2002 के दौरान अखिल भारतीय पुलिस लॉन टेनिस टूर्नामेंट में सम्मिलित हुए। वर्ष 2021 में गुवाहाटी में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस टेनिस टूर्नामेंट में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। जवानों के बीच खेल गतिविधियों एवं प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के आपको प्रयास हम सबके लिए प्रेरणादायक है। अब कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री रविदीप सिंह साही, एडिशनल डायरेक्टर जनरल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का आगमन होगा। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री रविदीप सिंह साही, एडिशनल डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ का आगमन। ये फनफेयर संकेत है माननीय मुख्य अतिथि महोदय के आगमन का। दर्शक जनों से अनुरोध है, तालियों से इनका स्वागत करें। परेड ने जनरल सैल्यूट देकर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया और अब परेड कमांडर माननीय मुख्य अतिथि महोदय
को परेड के निरीक्षण का आमंत्रण देने के लिए सधे हुए कदमों से सलामी मंच की ओर अग्रसर। परेड कमांडर द्वारा उप निरीक्षक प्रशिक्षु सिद्धार्थ सिंह भदौरिया द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय को परेड के निरीक्षण के लिए आमंत्रित किया गया। मुख्य अतिथि महोदय ने सहर्ष परेड कमांडर का अनुरोध स्वीकार किया। The men and women standing here are the future leaders. They have come up to this level after showing immense courage and strength. They have proved themselves to be true leaders. और अब परेड का निरीक्षण करने के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री रविदीप सिंह साही, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का परेड की टुकड़ी की ओर प्रस्थान, और उनके साथ हैं ब्रिगेडियर GS रेड्डी, सेना मेडल, पुलिस उप महानिरीक्षक, प्राचार्य, केंद्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय मुदखेड़ तथा परेड कमांडर उप निरीक्षक प्रशिक्षु सिद्धार्थ सिंह भदौरिया। दर्शक दीर्घा में बैठे अतिथियों से मेरा अनुरोध है कि तालियों से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। परम आदरणीय श्री रविदीप सिंह साही, एडिशनल डायरेक्टर जनरल दक्षिण जोन महोदय, आपके द्वारा वर्ष 1990 और 91 में 2 बार लगातार गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ में आयोजित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के परेड कंटिंजेंट का नेतृत्व किया गया। वर्ष 1998 को ग्रुप केंद्र रंगारेड्डी में आयोजित RAF के वार्षिक समारोह परेड का भी आपने कुशल नेतृत्व किया। महोदय, आप विभिन्न विषम परिस्थितियों जैसे कि आतंकवाद, नक्सल विरोधी अभियान, प्रशिक्षण एवं सुरक्षा संबंधी मुद्दों को संभालने में विशेषज्ञ हैं। आपको पुलिस प्रबंधन, प्रशासनिक योजना तथा परिचालनिक विषयों पर विशाल अनुभव है, जिससे आपने बल एवं देश को अपनी महती सेवाएं दी है। मान्यवर, आपकी अतुलनीय कार्यशैली, निष्ठा तथा पेशेवर कार्यकुशलता। The inspection vehicle is heading towards the smartly dressed platoon with their head held high in the honor and respect of the chief guest. In front of the inspection vehicle, platoon number 1, commanded by Sub-Inspector Trainee Rajkumar. और अब निरीक्षण वाहन प्लाटून संख्या 2 के सामने से गुजरते हुए, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक प्रशिक्षु उमेश कुमार यादव। Now, the inspection vehicle is in front of the platoon number 3, commanded by Sub-Inspector Trainee Ajay Kumar. अब निरीक्षण वाहन प्लाटून संख्या 4 के सामने, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक प्रशिक्षु रवि कुमार। Now, the inspection vehicle is heading towards the platoon number 5 with its constant pace. The platoon number 5 is commanded by Sub-Inspector Trainee Shivani Tripathi. अब निरीक्षण वाहन प्लाटून संख्या 6 के सामने से गुजरते हुए, इसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक प्रशिक्षु विशाल चतुर्वेदी। Now, the inspection vehicle is towards the platoon number 7, commanded by Sub-Inspector Trainee Akshay Kumar. और अब निरीक्षण वाहन प्लाटून संख्या 8 के सामने से गुजरते हुए, इसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक प्रशिक्षु राजेश कुमार वरुण। वर्ष 2009 में सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक एवं वर्ष 2018 में विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक से अलंकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019 में अति उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया है। बल के महानिदेशक महोदय के द्वारा भी आपको 9 बार महानिदेशक के पदक
एवं प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया है। जम्मू एवं कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का प्रशंसा पत्र तथा एनआईए के महानिदेशक द्वारा भी आपको प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया जा चुका है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में दक्षिण जोन के अधीनस्थ कार्यालयों व बटालियनों की कार्यशैली उच्चस्तरीय होगी। The leader who can stay optimistic and upbeat even under intense pressure radiate the positive feeling that creates resonance. By staying in control of their feeling and impulses, they craft an environment of trust, comfort, and fairness. And that self-management has trickle-down effect from the leader. These men and women displayed a great zeal and immense strength, and after undergoing all the toughness of the training, they have turned into real diamonds, shining bright and making proud everyone related to them, their families, their relatives, and all those who are connected to them. अब पुनः परेड के निरीक्षण के पश्चात निरीक्षण वाहन मंच की ओर अग्रसर। परेड के निरीक्षण के पश्चात माननीय मुख्य अतिथि महोदय एक बार पुनः मंच पर विराजमान होते हुए। परेड कमांडर सब इंस्पेक्टर ट्रेनी सिद्धार्थ सिंह भदौरिया ने माननीय मुख्य अतिथि महोदय से शपथ ग्रहण कार्रवाई एवं परेड को मंच से गुजारने की अनुमति मांगी और अगली कार्यवाही के लिए सधे हुए कदमों से अपने स्थान की ओर जाते हुए परेड कमांडर सब इंस्पेक्टर ट्रेनी सिद्धार्थ सिंह भदौरिया अब महोदय की निगरानी में शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण होगी। और अब सभी परेड प्लाटून कमांडर्स एवं परेड कमांडर परेड में सम्मिलित होते हुए। हमारे राष्ट्रीय गौरव, हमारी आन, बान और शान का प्रतीक तिरंगा एक दृढ़ संकल्प है। अन्याय और गुलामी के विरुद्ध हमारे संघर्ष का यह परिचालक है। राष्ट्र की एकता और अखंडता का तिरंगे के 3 रंग प्रतीक है। शौर्य, शांति और समृद्धि के चक्र प्रतीक है हमारी यश और कीर्ति का, जो कि पूरे विश्व में फैली हुई है। बंधी हुई डोर हमारी राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र के प्रति हमें हमारी प्रतिबद्धता का परिचालक है।
यह तिरंगा विश्व विजय का रूप है। परेड स्थल पर अपनी छटा बिखेरते हुए राष्ट्रीय ध्वज एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का निशान, ध्वजवाहक राष्ट्रीय ध्वज और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के निशान को लेकर परेड में शामिल सीधे नियुक्त अधीनस्थ अधिकारियों के पास से निकलते हुए राष्ट्रीय ध्वज एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के निशान को हाथ लगा राष्ट्रीय रक्षा का प्रण लेते हुए परेड में शामिल ये सीधे नियुक्त अधीनस्थ अधिकारी। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। और सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोहे सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा तागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र तुम जागो। बलिदानों के वज्र दंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, और रण के कंकड़ पहने वो राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। अग्निपंथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर, और जागो रक्त के भक्त लाडले, जागो सिर के सौदागर। और रावण का वध स्वयं करूंगा, रावण का वध स्वयं करूंगा, कहने वाला राम जगे, कौरव शेष ना एक बचेगा, कहने वाला शाम जगे। चोटी वाला चाणक जागे, पौरुष पुरुष महान जगे, सैल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। और जगे पद्मनी का जौहर, और जगे पद्मनी का जौहर, जागे केसरिया बाना, वह प्रताप का सिंह जगे, वह हल्दी घाटी का राना। दक्कन वाला जगे शिवाजी, खून शाहजी का ताजा, मरने की हट्ठाना करते विकट मराठों के राजा। छत्रसाल बुंदेला जागे, पंजाबी कृपाण जगे, और 2 दिन जिया शेर के माफिक, और 2 दिन जिया शेर के माफिक, वो टीपू सुल्तान जगे। और कलवाहे का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगे, भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के पांव जगे। और जिसकी छोटी सी लकुटी से संगीने भी हार गई, जिसकी छोटी सी लकुटी से संगीने भी हार गई, हिटलर को जीता वे फौजे 7 समुंदर पार गई। मानवता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे, उस लकुटी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। और आजादी की दुल्हन को जो, आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों भावर घूम गया, उस सुभाष की शान जगे और उस सुभाष की आन जगे। ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। और जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। इन सभी सीधे नियुक्त अधीनस्थ अधिकारी प्रशिक्षुओं द्वारा भारत और भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा, देशभक्ति और अपने कर्तव्यों का पालन निष्पक्षता, ईमानदारी और निष्ठा से करने की प्रतिज्ञा ली जा रही। भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा हमारे बल को निशान 19 मार्च 1950 में प्रदान किया गया। और आज का यह गौरवान्वित करने वाला दिन, जब राष्ट्रीय ध्वज और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का निशान इन सभी सीधे नियुक्त अधीनस्थ अधिकारी प्रशिक्षुओं को स्पर्श हेतु और अब कुछ ही क्षणों में शपथ ली जाएगी। अब मैं श्री लीलाधर महारानिया, मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी, केंद्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय 3 CRPF मुदखेड़ से शपथ पढ़ाने का अनुरोध करता हूं। महोदय। मैं सुपुत्र से परमेश्वर को साक्षी मानकर अपने धर्म से प्रण करता हूँ कि मैं भारत और भारतवर्ष का शासन, जो कि संविधान द्वारा बनाया गया है, का सच्चे मन से हितैषी रहूँगा और
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में अपने धर्म और सच्चाई के साथ सेवा करता रहूँगा। जल, थल और वायु में से जिस मार्ग से भी जाने की आज्ञा होगी जाऊँगा और जिसे मेरा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसकी सारी आज्ञाओं का तन मन से पालन करूँगा, चाहे उसमें प्राण जाने का भी भय क्यों न हो। कुछ ही क्षणों में निशान टोली परेड स्थल से प्रस्थान करेगी। आपसे पुनः अनुरोध है कि निशान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं तथा वर्दीधारी सैल्यूट करें। Nishan Toli will depart from the parade ground in a few moments. Hence, you all are requested to again stand up in its respect and uniformed are to salute. जब तक ऊंचा है तिरंगा तब तक ऊंचा सर मेरा है, जहां तक फैला है तिरंगा वहां तक फैला घर मेरा है। दर्शकों से अनुरोध है कि सभी इनका उत्साहवर्धन करें। परेड कमांडर अब परेड की शीर्ष की ओर जाते हुए